Hello, friends. Good evening. Good evening to all of you. Welcome to the Unacademy, India's largest learning platform. Unacademy is one of the largest and one of the experienced platform for online education. So let's take the advantage of this experience. My name is Manish Kumar Sivare. Welcome to the Unacademy. I have 9 years of teaching experience, especially in thermal engineering. And here mostly I taught RSCHMT thermodynamics IC engine. I'm also pursuing my PhD from DTU Delhi since 2018. I've done my MTech from NIT Amipur in 2011 in computational fluid dynamics and heat transfer in 2011. Two times high scored gate in 2009 and in 2014. So this is my profile ID unacademy.com/@mkshivare. So follow me, and this is app icon of Unacademy learning app. So go to this app, go to your Play Store, go to your Apple Store and download this app. You'll get lots of free live classes, lots of free special live classes हैं ये, है ना? यहाँ आपको बहुत सारी classes मिलने वाली है. So that enjoy this free session and continue your preparation on higher mode. Okay? Now, what you are getting rather than this? What you'll get here? Daily live classes are there on an academy platform, and you can chat with your educator and you can engage, and जिससे discussion better होगा and doubts clear हो जाएंगे, and also can participate in poll. Test and quizzes इसका important role है because suppose that you have completed one subject, suppose that आपने किसी एक subject को complete कर लिया है और आपको लगता है कि now you will perform 100% in GATE exam. I think so you should first self evaluate yourself and got some weak points or some drawbacks. ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ वीक पॉइंट्स रह जाए या कुछ आपके मतलब वीक पॉइंट्स रह जाए या कुछ गैप रह जाए, ठीक है ना? तो सो दैट ये जो लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है सेल्फ इवेल्युएशन में. स्ट्रक्चर कोर्सेज में आपको प्लानिंग मिलने वाली है. जो आपका सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है, वो जो आपको सब्जेक्ट आप कंप्लीट कराया जाएगा एज पर गिवन सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा. लेकिन जो सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट है वो कुछ ऐसा होगा कि पहले आपके बेसिक सब्जेक्ट होंगे, फिर आपके एडवांस, फिर एप्लीकेशन. तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें क्लियरली याद होंगी, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा कि वाई वी आर यूजिंग दिस एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस एंड वाई दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट. मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, रटना नहीं पड़ता. ओके, तो यहाँ पे आपको प्लानिंग मिलती है. अनलिमिटेड एक्सेस ऑन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन. You can access unlimited live video. Okay, this is the subscription price. There are two category, plus category and iconic category. The price list of plus category is like this as shown here, and for iconic group will be different. Okay, तो ये जो आपका फी स्ट्रक्चर है ये आपका प्लस कैटेगरी का. रिमेंबर दिस पॉइंट. There are different category for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 months, and 24 months. Okay? If you are using educator code like Manish is my educator code, if you are using this code, you will get 10% of discount. Yes, 10% of discount. Okay? आपको यहाँ पे कितना 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है किसी भी सब्सक्रिप्शन पे. After discount, this will be like this as shown here. Okay, all fees are including tax. There is no extra charges. Now come to this point. Iconic, second category of an academy. There are two category, 12 month and 24 month. दो पैकेज है आपके पास. 12 मंथ का जो फीस है आपका 45,000 एंड 24 मंथ का जो फीस है वो है 60,000. इफ यू आर यूजिंग सेम कोड जैसे कि बताया MANEESH, if you are using same code you will get 10% of discount again. Okay? आपको यहाँ पे भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा. And fees will be 40,500 and 54,000. Okay,
What is the difference between plus category and iconic? So just have a look. On plus category, you'll get, आपको यहाँ क्या मिलने वाला plus category में? You'll get India's best educators, interactive live classes, structured courses and PDF, live test and quizzes. So lots of things are there. कई सारी चीज़ आपको मिलने वाली plus educator में on subscription. But iconic category में आपको वो सारी चीज मिलेंगी ही जो आपकी प्लस में थी। उसके बाद कुछ एडिशनल भी हैं। एडिशनल क्या क्या है? पर्सनल कोच। यस, पर्सनल कोच मतलब पर्सनल कोच मीन दैट समवन विल बी देयर हु विल ऑलवेज फॉर यू। क्या बात है? कोई हमेशा आपके पास यहाँ पे होगा जो आपकी हर समस्या का समाधान करने वाला है। ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है आपका, वन ऑफ द बेस्ट फीचर है आपका अनअकैडमी का। ओके, ऐसा अगर मिल रहा है कोई तो फिर क्या ही बात है ना? तो अनअकैडमी का ये बेस्ट फीचर्स है। Someone will be there who will counsel you, who will motivate you, who will guide you, who will share your problem. Okay, so that it is one of the best feature. Personalized टेस्ट एनालिसिस, इंडिविजुअली टेस्ट एनालिसिस होगा पर्सनल बेसिस पे। स्टडी प्लानर मतलब समवन विल बी देयर हु विल गाइड यू व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू एज योर सीनियर, एज योर गार्जियन, कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से आपको सफलता मिलेगी। ये प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल, तो आपको प्रिपेयर्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आज का सेशन है, आज हम सिर्फ रेफ्रिजरेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम which extract heat from the substance to and tend to maintain the temperature below the surrounding। ये आपका रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होगा। एंड कुछ हमने सिस्टम पढ़े हुए हैं, इसके पहले के सेशन में हो चुके हैं आपके। आपने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जाना, आपने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जाना, आपने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जाना। और इन सभी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं एक ऐसा मीडियम था जो लोअर टेम्परेचर से हीट रिसीव कर रहा था। लोअर टेम्परेचर मीन दैट समटाइम्स वी आर कॉलिंग इवेपरेटर, समटाइम्स वी आर कॉलिंग दैट स्पेस विच इज टू बी कूल्ड। मतलब कई बार हम लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को या हम लोअर टेम्परेचर को बोलते हैं कि ये इवेपरेटर है, या ये आपका एक ऐसा स्पेस है जहाँ से आप हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या ये एक ऐसा स्पेस है जिसको आप ठंडा रखना चाहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड। तो आपका, अब सपोज दैट अब आपका ये पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया। रेफ्रिजरेशन सिस्टम को रन कराने के लिए यू विल हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। एंड इसमें क्या होगा? हीट एक्सट्रैक्ट होगा फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर। स्पेस हो गया, इवेपरेटर हो गया, दैट इज अ मेटर। एंड ये जो आपकी हीट है इट विल बी सप्लाई द हायर इन टर्म्स ऑफ क्यू, इन टर्म्स ऑफ Q2। ओके ना, यहाँ पे जो आपका है ये आपका रिवर्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ठीक है, ऐसा है, रिवर्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे जो आपका फ्लूइड है जो एज ए मीडियम वर्क कर रहा है विच इज टेकिंग हीट फ्रॉम द लोअर थर्मल रिजर्वायर या इवेपरेटर एंड रिजेक्टिंग हीट या डिलीवर टू द हायर या कंडेंसर। ये जो मीडियम है विच इज कैरिंग हीट फ्रॉम द लोअर एंड डिस्चार्जिंग या डिसिपेटिंग एट द हायर टेम्परेचर, that is called refrigerant, that is called refrigerant। क्लियर है? that is called refrigerant। okay? तो आपका रेफ्रिजरेंट क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट में दो कैटेगरी आती है आपकी, एक आती है प्राइमरी और एक आती है सेकेंडरी। एक आती है प्राइमरी और एक आती है आपकी सेकेंडरी। रिमेंबर दिस पॉइंट, प्राइमरी जो आपकी कैटेगरी होती है, प्राइमरी जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट होता है जो आपका रिवर्सिबल जो भी साइकिल है, आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल है, कोई भी साइकिल है आपकी, कोई भी रेफ्रिजरेशन साइकिल है, उसमें जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, मीन दैट यू कैन से विच फ्लूइड इज पासिंग थ्रू द कंप्रेसर इज कॉल्ड प्राइमरी। ओके, अब थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। सपोज दैट आपका क्या हुआ, ये आपका एक
रूम है, घर एक संसार। यहाँ पे आपने क्या किया, विंडो एसी लगा रखा है, ठीक है ना, बड़े आदमी है, विंडो एसी लगा लिया। विंडो एसी में क्या करेगा, इसमें जो कंटिन्यूअसली रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है वो तो आपका R134A करके हो गया, जो चलो रेफ्रिजरेंट R22 हो गया, जो भी है वो आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, तो वो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है विच इज पासिंग थ्रू द कंप्रेशर। लेकिन इस रूम में एयर कैसे आएगी, तो आप बोलते हैं इस रूम में एयर आएगी विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। मतलब यहाँ पे आपका एक फैन लगा होगा जो क्या करेगा, बाहर से एयर लेगा और उस क्वाइल के अक्रॉस क्रॉस कराएगा और ये एंटर करेगा। यहाँ पे जो आपका ये जो एयर हो गया ना, ये आपका एयर हो गया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर है, ये आपका एयर हो गया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो ऐसी विंडो एसी के केस में से एयर हो गया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। आपका जो आइस वाला केस होता है, जो आप आइस मैन्युफैक्चरिंग आइस प्लांट पे होता है, वहां पे जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है वो होता है ब्राइन, ठीक है ना। प्राइमरी में आप बोलते हैं कि कई रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपने पढ़ा जिसमें अमोनिया फ्लो होता है, वेपर में, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। आपने बोला R11, R22, R12, R134A, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके 134 है, ये 134 है ना, ये सब आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। क्लियर है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इज दैट रेफ्रिजरेंट which is flowing in the closed cycle of reverse in the closed reversible cycle, yeah, in the closed refrigeration cycle, okay, or you can say which takes heat from the space which is to be cooled, or you can say which is passing through the compressor, कुछ भी आप बोल सकते हैं। दिस इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की, तो which is taking heat from that space and delivered to the primary refrigerant। secondary refrigerant क्या हो गया, secondary refrigerant is that refrigerant which is taking heat from the space which is to be cooled and delivered it to the primary refrigerant। मतलब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट हो गया जो आपके उस स्पेस से हीट ले रहा है, जो आपको ठंडा करना है, और डिलीवर कर रहा है टू द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे रिमेंबर दिस पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है वो आपका अगर हीट इंटरेक्शन की बात करेगा तो वो बोलेगा लेटेंट हीट की बात। क्लियर है, जबकि जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है अगर ये बात करेगा तो ये सेंसिबल हीट की बात करेगा, यहाँ पे लेटेंट हीट की बात नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे ही बताते जाओगे तो ये हो सकता है एग्जामिनर पूछ दे कि ना वन मोर डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो समझ जाना कि ही इज वेटिंग फॉर दिस रिस्पॉन्स कि इन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हीट इंटरेक्शन विल बी इन फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, while in case of secondary refrigerant heat is transferring in form of sensible heat। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा ना। इसके बाद आते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के टाइप्स में। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द मेनली टाइप ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में आपका फर्स्ट डिस्कस करते हैं आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इसको आप हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड ही बोल सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट लाइक R11, R12, R134A, ठीक है ना। ये आपके क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का फर्स्ट पार्ट है विच इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एक्चुअली नॉमेनक्लेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नॉमेनक्लेचर पे आ जाते हैं डायरेक्ट। नॉमेनक्लेचर क्या है, कुछ कुछ आपका, सपोज दैट आपने बोला CHYCLEFZ, तो इसका जो नॉमेनक्लेचर नेम होगा वो होगा R(x-1, y+1 एंड Z। यहाँ पे जो क्लोरीन का नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जो यहाँ पे जो क्लोरीन का कंटेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम जैसे बात करें कि आपका सपोज दैट हम बोले कि आपका जो R11 है उसका नाम क्या होगा, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर आपने बोला कि रिवर्स में चल लेते, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है, ये मार्क कर देंगे इंपॉर्टेंट।
R11 को आप R011 लिख सकते हैं, और R011 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मतलब 1 माइनस 1, 0 प्लस 1, और ये आ गया 1। यहाँ से आपने देखा कि x की वैल्यू आ गई आपकी 1, y की वैल्यू आ गई आपकी 0, और z की वैल्यू आ गई आपकी 1। क्लियर है? तो यहाँ पे मतलब फॉर्मूला क्या होगा, अगर फॉर्मूला की बात करेंगे, सो दैट फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, C1, ठीक है ना, H0, Cl पता नहीं, अभी अभी देखते हैं, F आपका 1, यहाँ पे CF आ गया, तो यहाँ पे Cl3 आ गया। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट का नाम आ गया। क्लियर है? R11 का इस तरीके से हम किसी भी सैचुरेटेड का निकाल सकते हैं। क्लियर है? एक बार देख लो, ऐसे हम R134 का भी निकाल सकते हैं, R12 का भी निकाल सकते हैं, R22 का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? ना, अब आते हैं आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनके जो आपका सच दैट एग्जाम्पल करके लिख लो, R1150 ऐसा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका केमिकल फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे होगा, सपोज दैट आपने लिखा CXHY ClPFZ, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा R, यहाँ पे 1 आपका ऐसे ऐड हो जाएगा, प्लस X-1 Y प्लस 1 एंड Z। क्लियर है? ये आपका अनसैचुरेटेड है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ पे 3 डिजिट में चल रहा है वो आपका सैचुरेटेड है, जहाँ आपका 4 डिजिट में चलेगा वहाँ आपका अनसैचुरेटेड। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका आता है ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, है ना। ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट मतलब आपका R717, R118, R729, ऐसे करके कुछ भी आपका, ठीक है ना। इनका नॉमेनक्लेचर आप देख लो क्या होता है, ये आपका क्योंकि एग्जाम में आता भी है, ठीक है ना, और बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पे जो आपका नॉमेनक्लेचर होगा ये होगा R700 प्लस मोलिकुलर वेट, प्लस आपका मोलिकुलर वेट। जैसे कि एग्जांपल आपका एयर की हम बात कर रहे हैं, तो एयर का मोलिकुलर वेट कितना है आपका 29। यहाँ पे एयर के लिए जो यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट वो होगा आपका R700 प्लस 29, तो 729। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपका एक एक्सेप्शनल केस भी है, एक ही एक्सेप्शनल केस है, एंड समझ गए होंगे कि हमारे थर्मल इंजीनियरिंग में जब भी एक्सेप्शनल केस की बात करते हैं तो कौन आता है एक्सेप्शनल केस में, एक्सेप्शनल केस वाटर आ जाता है ना। तो सच दैट वाटर का अगर हम बात करेंगे तो वाटर में हमारा 7 लिखना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम क्या लिखते हैं, एक्चुअल वाटर का क्या होना चाहिए 718, लेकिन एक्चुअल में वाटर का होता क्या है 118, यहाँ पे 1 आ जाता है बस। उसके बाद अगर आप बात करेंगे अमोनिया का, ये क्या हो जाएगा, ये अमोनिया के लिए हो गया, ये आपका अमोनिया के लिए हो गया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17, तो 717। क्लियर है? 717। इस तरीके से आपका CO2 का भी आ सकता है। CO2 का वेट क्या होता है 16 32 12 44, तो आपका 7147। अगर हमसे पूछा जाए CO2 के लिए क्या होगा, तो CO2 के लिए होगा 744। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन है। इसके बाद एक और आता है आपका एजियोट्रॉप्स। जो एजियोट्रॉप्स होता है, ध्यान से सुनना, जो आपके सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है, सपोज दैट एक रेफ्रिजरेंट ऐसा है जिसका क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा है, एक रेफ्रिजरेंट ऐसा है जिसकी लेटेंट हीट ज्यादा है। अब हमें दोनों चीजें चाहिए, ठीक है ना, दोनों चीजें एवरेज में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो सैचुरेटेड कार्बन को मिला देंगे, दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मिला देंगे, और ऐसे रेशियो में मिलाएंगे कि हमारी डिजायर्ड कंडीशन क्या हो जाए, फुलफिल्ड हो जाए। उस केस में जो आपके रेफ्रिजरेंट बनते हैं उसे हम कहते हैं एजियोट्रॉप रेफ्रिजरेंट। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स, तो एक्चुअली एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
है ना, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वहाँ परसेंटेज बाय मिक्सचर होता है, ठीक है ना, परसेंटेज बाय मिक्सचर होता है। क्लियर है ना। अब आते हैं आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैटेगरीज वाइज बांट देंगे। कैटेगराइज वाइज आपने बोला बोला कि फर्स्ट आपका हो गया थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी देख लेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, तीन ही तरीके का आपका थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर सपोज दैट भूल जाए आपको तो याद करने का। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है व्हेन सिस्टम इज मेंटेन विद इट्स थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो तीन ही प्रॉपर्टी है हमारे पास। हमने बोला पहला थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आपको क्या किया जाता है, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने बोला जो इसका क्रिटिकल पॉइंट हो, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट जो हो वो कैसा हो, हाई होना चाहिए। ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ये कैसा है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी। क्रिटिकल पॉइंट आपका हाई होना चाहिए, उससे क्या होता है, ताकि प्रेशर रेंज ज्यादा ले सकते हैं, और जितनी ज्यादा प्रेशर रेंज होती है उतना ही ज्यादा आप कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है, तो आपने वीसीआरएस साइकिल में समझ लिया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे आपका लिक्विड और वेपर दो फेज में चल रहा होगा रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड ये कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, इस ऐसा क्यों, देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ अगर लिक्विड कम होगा तो थोड़ी सी हीट रिजेक्शन में भी रेफ्रिजरेंट सब कूलिंग में पहुंच जाएगा, जिससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है, और अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर ज्यादा होगी तो सुपर हीट में टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड इन इवेपोरेटर। दोनों केस में देखो, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ऐसा करने से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ता है और ऐसा करने से भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा। क्लियर है, ध्यान से समझ गए। अगर वीसीआरएस साइकिल याद होगी तो आपने बोला कि पहला स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड अगर कम है तो थोड़ी सी हीट रिजेक्ट करेगा इन कंडेंसर, और ये किस में चला जाएगा, सैचुरेटेड वेपर रीजन में आ जाएगा। और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसका टेम्परेचर थोड़ा ही इंक्रीज होगा। क्लियर है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब आप बोले कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ फेज होता है वो आपका होता है लेटेंट हीट की वजह से। तो लेटेंट हीट कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, क्या आता है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ताकि हीट जल्दी से इधर से उधर ट्रांसफर हो सके, क्योंकि विद इन द लिक्विड भी तो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, फ्रॉम द सरफेस टू द इनर। अगर सपोज दैट आपका रेफ्रिजरेंट पाइप में फ्लो हो रहा है, आउटर सरफेस से हीट एब्जॉर्ब को होगा, आउटर सरफेस से हीट जब सेंटर तक आएगा, सेंटर ऑफ द फ्लूइड तक आएगा, सेंटर एक्सिस तक आएगा, वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कैसा होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है ना। उसके बाद आप बोलते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए। देखो हमने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट ऊपर होना चाहिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे होना चाहिए, मतलब डिक्रीज, सबसे जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। क्लियर है ना। टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट द आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर शुड बी कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर, आप कैसे लिख दो, टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन हम बोलना चाह रहे हैं, हम बोल दें T2 पॉइंट पे, चलो अच्छा लिख दो टेम्परेचर, टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशर कैसा होना चाहिए, शुड बी लो होना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करेगा, शुड बी लो, ये डिपेंड करता है आपका प्रेशर रेशियो पे और रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज पे। क्लियर है ना। इसके बाद आपका आता है बी पार्ट,
बी पार्ट क्या है आपका? बी पार्ट में देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट। यहाँ पे देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। पहली प्रॉपर्टी की आप बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होती है, फ्लो में रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है और फ्रिक्शनल लॉसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब आपका विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा। आपने बोला विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ लीकेज। तो लीकेज कैसी होनी चाहिए? तो लीकेज तो ना ही हो तो बेहतर है, तो नो लीकेज होनी चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद कैसी होनी चाहिए? ऑर्डरलेस होनी चाहिए? तो नहीं, ऑर्डरलेस नहीं होनी चाहिए। नो ऑर्डरलेस मतलब ऑर्डर होनी चाहिए। ODOUR, ओ रबर कहाँ गई हमारी? यहाँ पे कैसा होना चाहिए कि लीक हो तो वो महके, हमें पता चल जाए। ठीक है ना? तो कैसी होनी चाहिए? ऑर्डरेबल होनी चाहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं, गंदा भी महकेगा तो चलेगा, कम से कम लीकेज तो पता होनी चाहिए ना, है ना? तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका इसके बाद हम किस पे आ जाते हैं? आप क्या आ जाते हैं? केमिकल। सी पार्ट आ जाते हैं केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टी में देखो क्या क्या आएगा आपका। केमिकल प्रॉपर्टी में आप बोलते हैं कि कैसी होनी चाहिए? नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। नॉन फ्लेमेबल, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कहीं पे हम रखें वहां पे विस्फोट हो गया। ठीक है ना? और उसके बाद नॉन टॉक्सिक भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लीकेज हो गया तो आजू बाजू के दो आदमी निपट गए। ठीक है ना? और आपकी कैसी होनी चाहिए? शुड नॉट केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब शुड नॉट केमिकल रिएक्शन, शुड नॉट केमिकल रिएक्शन, केमिकल नॉट केमिकल रिएक्टेंट विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जिस मटेरियल की आपने बना रखा है सिस्टम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उससे ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं कर जाए। ठीक है ना? केमिकल रिएक्शन उससे नहीं करना चाहिए। क्लियर है? एंड इट शुड नॉट बी मिसिबल विद ऑयल। ऑयल के साथ मिक्स नहीं हो जाए ताकि उसको सेपरेट करने में हमें दिक्कत हो। ठीक है ना? तो ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए। ठीक है ना? जो आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुनो, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं आपके इसी पहले प्रॉपर्टीज से आते हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद आते हैं आपके टाइप्स पे, क्लियर है, और नॉमेनक्लेचर पे। दो तीन जगह से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना? नॉमेनक्लेचर से तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट हैव अ लुक। ये देखो, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होगा। ठीक है ना? देखो, इन्होंने बोला R134A का नाम बताओ। R134A को आप 3 डिजिट में नहीं, 4 डिजिट में, 3 डिजिट में कंसीडर करना। ये आपका सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट है। ठीक है ना? इसकी वैल्यू क्या है? R134A। ए मतलब आपका आइसोलेटेड। जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर जब बनाते हैं ना तो हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन, तो जो आइसो वाला शब्द आता है उसकी वजह से ए आ गया। ओके, नाउ यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम कंपेरिजन करें, आर इज इक्वल टू x-1, y+1 और z। देखा, हमने देखा एक्स की वैल्यू आ गई 2, सॉरी हाँ सही तो है, वाई की वैल्यू आ गई 2 और जेड की वैल्यू आ गई 4। केमिकल फॉर्मूला क्या था? CX Hy Cl F Z, और ये क्या आ गया? P।
देखो पी की जो वैल्यू होती है एक्चुअली वो हम क्या करते हैं, ये आपका जो रेफ्रिजरेंट रहता है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो वो बस हम क्या करेंगे, बैलेंस कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया C2H2Z4, इसके दो हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्री हो जाएंगे तो 6 हो गया आपका। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे बस इतना ही हो गया, 6 हो गया, बैलेंस तो हो गया। बैलेंस हो गया, केमिकल स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा ना, ऐसे सपोज दैट ये आपने एच लगा दिया। देखो हमें आइसो का नहीं पता है, ठीक है ना, अब हमसे इसमें मत बहस करना कि आइसो का है तो जेड आपने ऐसे कैसे लगा दिया। इतना हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ गया वो C2H2F4 आ गया। क्लियर है? C2H2F4 आ गया। और ये बहुत ही अच्छा रेफ्रिजरेंट है। ये मान के चलो कि मतलब ये रिसेंटली जो डिकेट्स है इसमें मोस्ट ऑफ द फेमस जो आपका रेफ्रिजरेंट था जिसके मोस्टली एप्लीकेशन है वो यही है आपका। ठीक है ना? डिकेट्स मतलब आपका पिछले 10 सालों में अगर आप बात करें तो। क्लियर है? तो आप बोलो 2004 में आया था, पिछले 10 सालों में, लास्ट डिकेट बोला है, मतलब 2001 से लेके 2010 वाले पीरियड पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो आए हैं वो इसी के आए हैं। क्लियर है? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को करना होता है, अभी तो ये रिकॉर्डेड सेशन है, सो दैट यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड फर्स्ट सेल्फ बाय योर सेल्फ, सेल्फ मतलब अटेम्प्ट करो बाय योर सेल्फ, है ना, खुद से करो, तभी मजा आएगा। हम्म, मजा आएगा। देखो लाइफ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस से आपको कभी कोई नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस से या तो चीज़ें कॉन्फिडेंस में आएगी, देखो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे ना तो एग्जाम में आपको कुछ नहीं तो टाइम सेव तो होगा ही होगा। क्लियर है? टाइम सेविंग तो होगा ही होगा, और टाइम की कीमत प्राइसलेस। द यूज ऑफ रेफ्रिजरेंट R22 फॉर टेम्परेचर बिलो -30 इज नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू, रिमेंबर दिस पॉइंट। ये जो आपके कुछ प्रॉपर्टी रेफ्रिजरेंट थे जैसे R11, R12, R22, R134A, ये चारों रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेना चाहिए, है ना, इससे क्वेश्चन आता है। ओके ना, यहाँ पे जो आपका आंसर है R22 जो है टेम्परेचर नॉट बिलो -30 के नीचे हम R22 को क्यों यूज नहीं करते हैं। पुअर मिसिबिलिटी विद लुब्रिकेशन ऑयल, गलत। पुअर मिसिबिलिटी विद लुब्रिकेशन ऑयल, गुड मिसिबिलिटी, पुअर, गलत। मिसिबिलिटी का केस ही नहीं था, टेम्परेचर का केस था, ठीक है ना। लो इवेपरेटिंग प्रेशर, लो इवेपरेटिंग प्रेशर रेफ्रिजरेंट R22, लो इवेपरेटिंग प्रेशर। लास्ट क्या है, हाई कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर, हाई कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका रेफ्रिजरेंट R22 होता है, जब कंप्रेसर के बाद जाता है तो जो उसका टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द VCRS, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जब हम एक्सपेंशन करने के बाद इसको जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, मतलब T4 जो होता है वो आपका -30 रीच नहीं कर पाता। देखो जो आपका अप्रोचेबल टेम्परेचर है वो हमेशा कैसा होगा, वो T4 वाला होगा, ऐसा होगा T4 वाला होगा, या आपका क्या होगा, T4 से भी थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? आप ऐसे मान लो T4 के आसपास हो। T4 क्या है, -30 अचीव नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ T2 इज मोर हायर। ओके, सो लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ Now, the desirable combination of property for a refrigerant include, okay, क्वेश्चन करो ABCD। देखो आपने क्वेश्चन करना है, दिस इज माय प्रोफाइल आईडी, फॉलो मी। क्लियर है? हाई स्पेसिफिक हीट एंड लो स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन्होंने बोला द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वही मैंने बोला जो एजियोट्रॉप्स होते हैं उनमें जब आप रेफ्रिजरेंट बनाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को आप क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। तो हाई स्पेसिफिक हीट, लो स्पेसिफिक हीट, क्या इसको कंसीडर करके चलेंगे। हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एच की वैल्यू बोल रहा है, लो हीट लेटेंट हीट, तो ये एच की वैल्यू तो बिल्कुल ही गलत है।
हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो हाई स्पेसिफिक हीट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, देखो स्पेसिफिक हीट का फंडा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। हाई थर्मल कंडक्टिविटी हम के क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है ना, एंड फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट आपका कहाँ पे कंसीडर होता है, जब आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, क्लियर है, जब आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तब आता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपका टेम्परेचर का, मतलब जो आपका डिजायर्ड कंडीशन रहता है वो आपका टेम्परेचर का रहता है, ठीक है ना, तो लोअर टेम्परेचर रीच करने के लिए आपका थर्मल कंडक्टिविटी बेहतर हो, ताकि रेट ऑफ हीट इंट्रैक्शन, रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, आपका के इंक्रीज हो जाएगा, तो जो क्यू लोअर होता है ना, ये आप क्या करने लगेगा, रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द लोअर स्पेस विच इज टू बी कूल्ड, ये इंक्रीज हो जाएगा, ओके। लो फ्रीजिंग पॉइंट, यस, बिकॉज रेफ्रिजरेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको लोअर टेम्परेचर अचीव करना है, एज लो एज यू कैन अचीव, दैट्स बेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सो दैट whenever we make some combination by some refrigerant, so we will try to achieve lower freezing point, okay, as lower as possible, okay, so C part will be the correct answer। ये आप याद भी कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन रिपीटिशन पे रहता है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन कैसे रहता है, रिपीटिशन पे रहता है, क्लियर है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। In conventional refrigerant, what is the element responsible for ozone depletion? ESC 2009। इन्होंने बोला है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन डिप्लेशन है, उसके लिए कौन सा रेफ्रिजरेंट, एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो क्या क्लोरीन उसके लिए जिम्मेदार है, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, सो फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो आपका क्या है, ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद फिर से क्लोरीन बनाता है, ठीक है ना, फिर से क्लोरीन बनाता है, तो ये आपका चेन रिएक्शन होता है, और चेन रिएक्शन में क्या होता है, हर एक रिएक्शन में आपके ओजोन पार्टिकल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ओजोन क्या हो जाते हैं, ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, इस वजह से क्लोरीन ही जिम्मेदार है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, Environment Protection Agency achieve against the use of chlorofluorocarbon refrigerant because these react with water vapor and cause acid rain, plant and cause greenhouse effect, oxygen and causes depletion, ozone layer and cause its depletion. Last part is the important. ओजोन लेयर डिप्लेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो हमारे सन से जो रेज आ रहे हैं वो क्या हो रही हैं, फिल्टर्ड होके आती हैं थ्रू ओजोन लेयर। अभी ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है तो डायरेक्ट आ रहे हैं, विच इज मोर हार्मफुल फॉर फॉर एनिमल्स, फॉर ह्यूमंस, फॉर प्लांट्स, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, सो दैट हम नहीं चाहते कि ओजोन डिप्लेशन हो, इसीलिए यहाँ पे एक एजेंसी क्रिएट की गई थी, ठीक है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉपरली मेन फोकस किया कि आप कोई सा भी ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करें जिसमें क्लोरोन हो, बिकॉज आप कितना भी अच्छा सिस्टम यूज करें लीकेज हो ही जाती है, और थोड़े से भी क्लोरीन की वजह से हमने क्या बताया, वहाँ चेन रिएक्शन होती है, तो चेन रिएक्शन में अगर क्लोरीन एक बार गया तो कंटिन्यूअसली क्या करता रहता, चेन रिएक्शन करता रहता है ना। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन मिल्क रेफ्रिजरेट, ये तो अभी हमने थ्योरी बताते समय बताया था, इन मिल्क चिलिंग प्लांट द यूजुअल सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है ना, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हमने क्या बताया था, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज दैट रेफ्रिजरेंट which takes heat from the space which is to be cooled and delivered it to the primary refrigerant, that is called secondary refrigerant, okay? तो यहाँ पे आपका ब्राइन हमने ऑप्शन बताया था, यही एग्जांपल दिया था, मिल्क चिलिंग प्लांट या आइसक्रीम प्लांट या आइस प्लांट, ओके, क्लियर है, सो लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर।
Now, next question is this. Selection of refrigerant for vapor compression system depend upon which among the following. इन्होंने बोला है कि VCRS सिस्टम के लिए जब आप रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं? टॉक्सिसिटी, आई थिंक टॉक्सिसिटी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि रेफ्रिजरेंट इतना जहरीला है, क्योंकि देखो सिस्टम इज सिस्टम, लीकेज हो सकती है, पॉसिबिलिटी, देखो लीकेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। तो अगर टॉक्सिक होगा तो क्या होगा, जैसे ही लीकेज होगा तो एक दो निकल लेंगे, हम नहीं चाहते टॉक्सिक हो, तो आपने बिल्कुल इसको ऑब्जर्व कंसीडर करके चलेंगे। इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल इफेक्ट हमें सोचना पड़ेगा ताकि क्लोरीन जैसी कंटेंट ना आए, एलिमेंट ना आए जो आपको ओजोन डिप्लेशन भी करे। सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टीएच डायग्राम बनाते हैं तो हमें भी पता है कि हम सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वो लेटेंट हीट पे मैटर करता है। तो आपका सैचुरेशन प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन आ गया। लास्ट पार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, सो लास्ट पार्ट विल बी द करेक्ट, ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव विल बी क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अगर देखो इसमें से किसी को भी कोई डाउट रहता है तो आप यूट्यूब में ही नीचे, यूट्यूब में ही वीडियो के नीचे है ना, यूट्यूब वीडियो के नीचे जो आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स होता है ना, कमेंट सेक्शन बॉक्स, आप वहाँ कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो भी आपको इशू है, आई रिप्लाई, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, आई विल रिप्लाई, ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन, इन्होंने क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आपको एक्चुअली पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये याद करने का है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो IAS 1996 में भी आया ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट आपका अगर हम बात करते हैं किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो होता है आपका वाटर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हमने नहीं बोला, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो बहुत कम होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है, किसके लिए, वाटर के लिए, क्लियर है। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑयल सेपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन रेफ्रिजरेंट सिस्टम इफ, oil separator is not required in the refrigeration system if refrigerant and oil are immiscible at all pressure and temperature. Refrigerant and oil are immiscible at condensation pressure and temperature. तो यहाँ पे जो बोला गया ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सही नहीं है। ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर का मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब है कि रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर इमिसिबल, कंडेंसेशन पे होना चाहिए, ठीक है ना, कंडेंसेशन प्रेशर पे टेम्परेचर पे होना चाहिए, कंडेंसेशन ड्यूरिंग द कंप्रेसर, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन, दैट डजंट मैटर। रेफ्रिजरेंट ऑयल तो ये आपका सही हो गया, रेफ्रिजरेंट ऑयल मिसिबल, मिसिबल तो होने नहीं चाहिए, ये गलत, ये भी आपका गलत, और ये आपका ड्यू टू ऑल प्रेशर टेम्परेचर लिखा हुआ था इसलिए गलत, तो बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मॉइस्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम रेफ्रिजरेंट टू अवॉइड। मॉइस्चर हम क्यों रिमूव करते हैं? मॉइस्चर मतलब आपका लिक्विड वाटर वेपर या वेट वाटर वेपर। कंप्रेसर सील फेलियर, कंप्रेसर सील हो सकता है, कंप्रेसर सील फेलियर, कंप्रेसर की जो सील है वो खराब हो सकती है, तो बिल्कुल सही है। फ्रीजिंग एट एक्सपेंशन वॉल, यस एक्सपेंशन वॉल पे टेम्परेचर सबसे कम होता है, एक्सपेंशन वॉल के एट द एंड पे, यहाँ पे फ्रीजिंग होने के चांसेस है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। रिस्ट्रिक्शन टू रेफ्रिजरेंट फ्लो, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा स्लाइटली मतलब पार्शियली फ्रीज होगा तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन करेगा पार्शियल फ्लो में, बिल्कुल सही। कोरोजन ऑफ स्टील पार्ट, बट ऑब्वियस है कि जो वाटर वेपर पार्टिकल होते हैं अगर ये कंडेंस हो गया या वेट वेपर है तो ये मॉइस्चर क्रिएट करके, मॉइस्चर ही तो है एक्चुअली, ये क्या करेगा, स्टील पार्ट के साथ रिएक्शन करके उसको क्या करेगा, कोरोजन, कोरोजन बन कर देगा, जंग जैसे कहते हैं, ठीक है ना, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपके सब सही हो गए, तो 1 2 3 4 ऑल पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर।
क्लियर है? ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन एक्चुअली रेफ्रिजरेंट से रिलेटेड, जो आज का सेशन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है ना। द लीक्स इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फेरॉन आर डिटेक्टेड बाय, द लीक्स इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फेरॉन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका न्यूमेरिकल जो है ना ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। इस सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, ये आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत बार आया हुआ है और बहुत एग्जाम में आया हुआ अलग अलग, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो आपका फेरॉन होता है, अभी पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। द लीक इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम फेरॉन आर डिटेक्टेड बाय अ हाइलाइट टॉर्च विच ऑन डिटेक्टिंग प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लेम लाइटिंग, बिल्कुल सही है। जो आपका सपोज दैट आपने फेरॉन रेफ्रिजरेंट यूज किया है तो उसकी लीकेज को पता करने के लिए, क्योंकि जो फेरॉन होता है वो ऑर्डरलेस होता है, हिंदी में कहते हैं गंधहीन, है ना, जिसमें कोई महक नहीं होती है, तो अगर लीक भी हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से लीक हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मतलब लीकेज हो रही है, अगर वो ऑर्डर है, उसमें महक है, बदबू है, हम उसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका फेरॉन है वो इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते बिकॉज इट्स ऑर्डरलेस। सो दैट यहाँ पे एक आपका सॉल्यूशन है कि एक हाईलाइट टॉर्च होती है, हाईलाइट टॉर्च होती है। जब हम हाईलाइट टॉर्च को क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर दिखाई देता है रेड चश्मे से, बिल्कुल वैसे ही हाईलाइट टॉर्च से आपको जो लीकेज ऑफ फेरॉन है वो एज ए ग्रीनिश फ्लेम की तरह दिखाई देती है, ठीक है ना, एज ए ग्रीनिश फ्लेम की तरह दिखाई देती है। क्लियर है? तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बाकी आपके सब ऐसे ही है टाइम पास के लिए, बी सी डी। क्लियर है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सिर्फ 2006 में नहीं आया, बहुत बार हुआ, बहुत एग्जाम में आया हुआ। ओके नाउ में क्या है, लिस्टिंग मैच करनी है आपका। फर्स्ट लिस्ट में केमिकल फॉर्मूला और सेकंड लिस्ट में आपका जो डेजिग्नेशन दी हुई है, मतलब डेजिग्नेशन मतलब ये है आपका R12, इसका मतलब है R12, इसका मतलब है R22, इसका मतलब है R42, इसका मतलब है R113 और इसका मतलब है R717, ठीक है ना। तो देखो R717 कुछ तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, ये आपका हो गया 5, R12 ए में 5 किस में है, ये गया ये गया, ठीक है ना। 5 अब 1 1 2 4 1 2 4 1 और 3 का देख लेते हैं, बस इसका चेक कर लेते हैं। देखो आप चाहो तो सबका चेक कर लो, आप चाहो तो सबका चेक कर लो, हम लेकिन बी का चेक करेंगे। CCl2F2, तो आपने बोला CCl2F2, CCl2F2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 2, x-1 y+1 z, वैल्यू आ गई r, ये हो गया 1-1 0+1 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी R12, इसकी वैल्यू आ गई क्या, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, तो लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऐसे आप किसी की भी चेक कर लो, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है ना। ऐसे आप किसी का भी चेक कर लो, तो लास्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन हमें करने होते हैं एग्जाम में, और ये तब आता है जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, कई बार तो ऐसा होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आधे केमिकल फॉर्मूला याद हो जाएंगे। तो मैं बार बार टारगेट करता हूँ, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर, ठीक है ना। आपके पास 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में आप शायद 7 घंटे भी अगर सो लिए तो बाकी का सारे समय आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब खाते पीते खेलते कुछ भी है, मेमोराइज ही तो करना है, याद ही तो करना है। प्रैक्टिस तो देखो कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए, उस पर ब्रेक डाउन नहीं आना चाहिए, क्योंकि टाइम इज प्राइसलेस। फ्रॉन 12 इज ऑर्डरलेस, बिल्कुल सही लिखा है, एंड इट्स लीकेज कैन नॉट बी इजिली डिटेक्टेड, वेरी गुड। हाउएवर इट इज प्रिफर्ड इन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, हाउएवर मतलब ये पहले तो ऑर्डरलेस है, इजीली डिटेक्ट नहीं होती, फिर भी हम इसे प्रिफर करते हैं इन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। रीजन, it is almost impossible for Ferron 12 leakage to attain a fatal concentration,
it is almost impossible for furan leakage to attain a fatal concentration. ये भी आपका बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो यहाँ पे रिमेंबर दिस पॉइंट, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम रीड करते हैं, फिर हम यूज करते हैं एक शब्द देयरफॉर, और फिर उसके बाद हम करते हैं असर्शन पढ़ते हैं। ये हमारा पढ़ने का तरीका है। पहले हम रीजन पढ़ेंगे, यूज करेंगे देयरफॉर, और फिर असर्शन। तो ध्यान फिर हमें क्या होता है पता चल जाता है। ये हम सिर्फ तब अप्लाई करते हैं जब इफ बोथ आर एंड ए आर, अगर दोनों सही है आपका तभी हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो रीजन, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर फेरॉन लीकेज to attain a fatal concentration. Therefore, F12 is odorless and its leakage cannot be easily detected. However, it is preferred in air conditioning. Actually, odorless वाला term अलग कर दो। अब बोलो it is almost impossible for ferron leakage to attain a fatal concentration and its leakage cannot be easily detected. तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, तो ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग मी। लेट्स क्रैक गेट एंड EAC एग्जाम विद दिस प्लेटफॉर्म। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, hit the bell icon button. This is my name, which is code, and you will get 10% of discount. Okay, this is the YouTube comment section box. If you have any kind of issue, then please mention there. Okay, so again and again, let's crack GATE and EAC exam with this platform. So thank you so much, thanks to watching me.